पड़ जाता है। ओह, क्यों? सब ठीक है।
Good evening, everyone. Good evening. Sorry, I'm a bit late, but let's, without wasting time, let's start up. Now, will you please tell me whether we have completed? I think we have completed our economics chapter last week. Good morning, good evening, Mite. Good evening. I think we have completed the economics chapter last week, haven't we? Yes. So today we are going to start up with history. Is it? So today we are going to start up with our history lesson, right? Good evening, everyone. Good evening. How are you, Bachi? I am good. Thank you so much. So, without any further delay, let us start up the first chapter of history, which is the French Revolution. Right? The first chapter of history is the French Revolution. This is a chapter that is very important in the history of the world. World history mein this is a very, very important chapter. Why this is important, you will come to know when we'll start studying this chapter. We'll know about the events that happened in France during the 18th century. This chapter deals with the 18th century France, what all things took place there, the revolution that took place in France. Right now, do you know what a revolution is? Do you know what a revolution is? Can anyone tell me something about revolution? Big change in less time. Yeah. Please speak on. I could not get you. Big change in less time. Big change in less time. Wow, this is put very nicely forwarded by. What's your name, baby? Beta? Himansh. Himansh, that's very nice, beta. An immediate change, a drastic change, very well written by some of you also. A drastic change in the society is called a, yes, a fundamental and relatively certain change in political power. Kavya, very well written. But a reform or a revolution is not at a large scale. Revolution is always a huge change in the whole society. Next time I'll select other students. Something was put on the mic. Please, can you please mute yourself, everyone? Then you have. Beta, who is this? Great. So we were discussing about revolution. So revolution is a very immediate, a drastic, a sudden change in the society. Change in the order of the society, the culture of the society, a drastic change, immediate, which is supported by people of that society. That is why immediate change हमेशा revolution और immediate change जो होती है ना, एक ही चीज है, और they are always backed up by the common people. Revolution change, it is always backed up by the common people. जब तक common people, Rajni, I'll get back to you, don't worry. जब तक common people जो होते हैं ना, वो उस change में शामिल नहीं होंगे, तब तक पूरी society में change नहीं आएगा. One man there or a dictator there cannot change the whole society. A sudden change in the whole society can always come when the people revolt. So it is, revolution is always backed up by the people, and it is a sudden change in the whole structure of the society, right? The principles, the rules, the which the society might be following, वो पूरे के पूरे change हो जाते हैं, ठीक है? Now there is a child who is asking me the difference between a revolution and a reform. Reform is at a very, very small scale, ठीक है? इनका जो स्केल है उस पे डिफरेंस रहता है. रेवोल्यूशन इज ऑलवेज चेंज इन द होल सोसाइटी ऑल टुगेदर.
and reform is at a very very small scale. Reform होता है किसी, I have no idea. Vansh, see these questions you can ask Mr. Rohel, right? कि social studies आपके टेस्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो I have no idea why whether this would be coming in your next class test. Sundays को होते हैं ना आपके टेस्ट, तो I don't know, I haven't been informed yet about the tests, so I'm afraid it's not coming in your test, right? So let's come back. Rajni, have you got the difference between a reform and a revolution? Revolution is at a large scale and रिफॉर्म इज एट अ वेरी वेरी स्मॉल स्केल. एक लॉ को चेंज करना, रिफॉर्म लाना, छोटा रिफॉर्म लाना, किसी एक पर्टिकुलर चीज में रिफॉर्म लाना, ठीक है? सोसाइटी के एक बहुत छोटे एस्पेक्ट को भी अगर हम चेंज करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, उसे कहते हैं रिफॉर्म करना उसे, ठीक है? और रेवोल्यूशन होता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी रिफॉर्म हो रही है. आई मीन इट इज एट अ वेरी वेरी लार्ज स्केल. Got it? So this chapter, French Revolution, deals with the change that came in the society of France in the 18th century. In the 18th century, what all changes took place in the society of France, that we are going to talk about, and what were the reasons that led to these changes. Most importantly, what were the reasons that led to change in the French society, that also we are going to study here. Right? So France basically was a monarchy. Monarchy, you all understand? Can anyone tell me what monarchy is? Please write it down. What do you mean by a monarch, or what is monarchy? ये शायद हमने political science में भी discuss किया है, but to freshen up, can anyone tell me what monarchy is? Rule of king. Very good. Everyone, very Hereditary rulers. yes, rule of king or hereditary rule is called monarchy. So earlier we all know, yes, everyone is correct, because we all know that earlier most of the societies, almost all of the societies were ruled by kings. Now king is a ruler which is not elected by the people. लोग उसे सिलेक्ट नहीं करते हैं. Yes, rule of king from generation. Got it now. तो लोग उस रूलर को सिलेक्ट नहीं करते हैं. It is hereditary. The rule is hereditary, passed on to that person. ठीक है? उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर किंग थे, इसीलिए वो किंग है, इसीलिए उसका बेटा भी किंग होगा, इसीलिए उसका बेटा भी किंग होगा. ठीक है? बेटे का बेटा भी. तो जनरेशन से जो रूल पास ऑन होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मोनार्की. ठीक है? मोनार्की की बहुत ज्यादा आजकल ज्यादातर, why almost all countries are turning into democratic countries, rule of people, because people do not like one person to rule upon them, right? People want themselves to be heard of, right? हमारी कोई बात सुने, वो हमारी बात कहाँ पर कैसे सुनी जाएगी? वो सिर्फ डेमोक्रेसी में सुनी जाएगी. ठीक है? डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ पीपल. डेमोक्रेसी का क्या है, कैसे है, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया पॉलिटिकल साइंस में. ठीक है? एंड वी आल्सो नो कि मोनार्की की अपनी क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं. ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर भी फ्रेंच सोसाइटी में भी मोनार्क का रूल था. ठीक है? मोनार्की थी, वहां पे किंग का रूल था. और उस किंग के रूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, लोगों के ऊपर क्या क्या उन्होंने ऑप्रेसिव अपनी रूल्स लगाए, वो चीज हम पढ़ेंगे. ठीक है? इन दिस चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो दिस इज अ स्टोरी, एक कहानी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ. आई वॉन्ट एवरीवन टू लिसन वेरी केयरफुली. ये कहानी बड़ी अच्छी कहानी है, जिससे हमें ये पता चले, यू नो, हिस्ट्री इज अ स्टोरी दैट वी all hear and we all like, you know, we all want to know the events that happened in our past. तो एक वो कहानी जो एक सच्ची कहानी है, जो हिस्ट्री होती है, it is a true story, always a true story which is told to the kids so that they learn that आज हम जिस सिनेरियो में जी रहे हैं, that scenario is the result of the events
that happened in our past. This scenario today, I'm speaking in English. Why I'm speaking in English? This is something that happened in our past. British rule over us. ठीक है, तो कुछ हमारा आज का जितना भी सिनेरियो है वो सारा डिपेंड करता है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है। वो पास्ट जब हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, और हिस्ट्री जो है वो हमेशा हमें कहानियों की तरह पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब अगर हम बोलेंगे कि अरे हिस्ट्री की बुक बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी बोरिंग होती है, never ever think such a thing. Okay, you should not be thinking like this. History is something which is very interesting, and it is, you should always take it as a story. एक कहानी सुन रहे हैं अभी हम मैम से, और कहानी जैसे हमें कहानियां याद रहती हैं, बचपन में जितनी कहानियां सुनी हुई हैं हमने सब याद रखी हुई हैं। तो हिस्ट्री एक ऐसी कहानी है, वो आप भूल क्यों जाते हो? ठीक है, हिस्ट्री को भी एक कहानी की तरह याद रखना है। सबसे पहले लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। दिस स्टोरी बिगिंस विद एन इवेंट ऑफ 18th सेंचुरी इन फ्रांस। फ्रांस में 14 जुलाई 17, कुछ डेट्स याद रखनी पड़ती है कहानी में, कुछ डेट्स, कुछ लोगों के नाम। ठीक है, बाकी कहानी आप मेजरली आपने कहानी याद रखनी है। तो डेट कहां से हमारी शुरू हो रही है? 14th जुलाई 1789। 14th जुलाई 1789 को क्या हो रहा था? फ्रांस की सिटी है पेरिस, वहां पर सिटी ऑफ पेरिस में लोग जमा हो रहे थे। लोग क्यों जमा हो रहे थे? बिकॉज द स्टेट ऑफ फ्रांस, द सिटी ऑफ फ्रांस वाज इन एन अलार्मिंग सिचुएशन। अब क्या अलार्मिंग सिचुएशन हो रही थी? King had commanded its army, its soldiers to move into the city. ठीक है, कहानी शुरू हो रही है 14 जुलाई 1789 का ये वक्त बताया हुआ है, जहां पे किंग के सोल्जर्स जो हैं वो पेरिस के सिटी में घूम रहे हैं। ठीक है, और कहीं से रूमर्स लोगों ने सुने हैं कि ये जो किंग्स के सोल्जर्स हैं ये हमें मारने वाले हैं, दे आर गोइंग टू शूट अस। ठीक है, अब जब लोगों को ये पता चल गया है कि किंग के सोल्जर्स हमें मारने वाले हैं, तो लोगों ने एक यूनिटी दिखाई, सारे एक साथ मिले और किंग के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, they all stood against the king. They all because more than 7,000 men and women, they all went in front of the town hall. Town hall होता है एक ऐसी जगह, town hall का पता है आपको क्या होता है? हाँ, जहां पर कम्युनिटी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, राजा का जितना भी काम चलता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जितना भी होता है वो टाउन हॉल से चलता है। तो एक तरह का वो एक सरकारी, एक गवर्नमेंट, या तब तो चलो गवर्नमेंट क्या थी, किंग ही थी, तो किंग के जितने भी मिनिस्टर्स या उनके आगे ऑफिसर्स थे, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, वेरी गुड। तो जितना भी उसकी टाउन हॉल एक ऐसी जगह थी जहां पर उनका सारा गवर्नमेंट का सामान पड़ा हुआ था। ठीक है, तो वहां पर सारे लोग gathered, more than 7,000 men, common men and women, they all gathered and they went, they all gathered around the town hall. Town hall हमेशा एक मेन जगह होती है, center of the city, administrative office, वहां पर आगे पीछे बहुत सारे लोग जमा हो गए। ठीक है, वो जमा क्यों हुए मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जो राजा था उसने अपने सोल्जर्स को सिटी में भेज दिया था और लोगों ने ये सोचा कि राजा हम सबको मारने वाला है। ठीक है, soon the army is going to open fire on us. So what happened कि ये सारे के सारे लोग 7,000 men and women, they all gathered and formed people's militia. What do you mean by people's militia? People's militia होता है लोगों की मिलिट्री। ठीक है, उन्होंने आगे पीछे टाउन हॉल से जितने हो सके और कहीं से जितने भी वेपन्स हो सकते हैं वो जमा किए। ठीक है, पीपल्स आर्मी। ठीक है, पीपल्स मिलिट्री या पीपल्स आर्मी। तो they all gathered and formed people's militia. अपने आप को प्रोटेक्ट करने की उन्होंने कहा कि this is high time now, we should all stand against the king and we should all stand for ourselves. ठीक है, तो उन्होंने सबने they all gathered and they stood against this king. ठीक है, उसके बाद they all many of them formed, several hundreds of them, they all marched towards the eastern part of the city where there was fortress prison. Prison जो राजा ने बनाया हुआ था वो एक फोर्ट की तरह बनाया हुआ था। ठीक है,
बेस्टाइल था प्रिजन का नाम, उस फोर्ट का नाम जहां पर उन्होंने वो प्रिजन बनाया हुआ था, और उन्होंने उस प्रिजन को तोड़ा, उसके अंदर गए, सारा तोड़ दिया फोर्ट्रेस ऑफ बेस्टाइल, उसमें से जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया। ऑल्दो देयर वर ओनली 7 प्रिजनर्स, सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे उस फोर्ट के अंदर, जो फोर्ट्रेस प्रिजन था उसके अंदर, तो उन 7 लोगों को उन्होंने रिलीज कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या शो हो रही थी, ये सारी क्या शो कर रही थी, ये सारी चीजें ये शो कर रही हैं कि लोग जो हैं दे आर अगेंस्ट द किंग, राजा के खिलाफ हैं ये लोग। ठीक है, उस राजा के प्रिजनर्स को छुड़वा दिया, मतलब कि राजा के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया लोगों ने कि किंग वी डोंट वांट योर रूल नाउ, राइट। तो they had an armored fight. Yes, they had an armored fight with the commander of Bastille, where the commander of Bastille was killed. जो उस फोर्ट्रेस प्रिजन का जो कमांडर था, जो आर्मी का जो कमांडर था वहां पर, उसको मार दिया गया। और बेस्टिल को सारे लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, this fort was destroyed, it was abolished, and the stones and the fragments that left, सारा का सारा फोर्ट तोड़ दिया गया, और उसके जो पत्थर थे ना वो मार्केट में बेचे गए। वो क्यों बेचे गए मार्केट में? बिकॉज इट वॉज अ सोवेनियर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ किंग्स रूल। उनको लगता था सोवेनियर होता है एक निशानी, एक यादगार। किस चीज की यादगार थी उनकी? कि किंग के रूल, किंग का रूल इतना खराब वो क्यों करते थे? क्योंकि दे यूज्ड टू थिंक दैट बेस्टाइल इज द सिंबल ऑफ डिस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोटिक पावर्स? डिस्पोटिक होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड despotism. Despotism is a form of government where it is like dictatorship only. Despotism होता है, it is like dictatorship where there is one man's complete absolute rule. He doesn't listen to anyone, and जो भी वो फैसले करता है, जो भी वो काम करता है, वो सिर्फ अपने लिए करता है और अपने खुद से ही अपने ही फैसले करता है, किसी और की बात वो नहीं सुनता है। ठीक है, सो इस डिस्पोटिक पावर का जो सिंबल था फोर्ट्रेस ऑफ बेस्टाइल, उसको लोगों ने तोड़ दिया। उसके जो फ्रेगमेंट, उसके कमांडर को भी मार दिया, प्रिजनर्स को, 7 प्रिजनर्स थे, फिर भी उनको छुड़वा दिया या जो भी रिलीज कर दिया। और फाइनली उसके जो फ्रेगमेंट्स थे, छोटे छोटे पत्थर जो वहां से तोड़ के लाए थे, they were being sold in the market as souvenir of destruction of the king's rule, right? उसके बाद फॉलोइंग डेज में, अगले कुछ दिनों में पूरा पेरिस was in turmoil. ठीक है, एक और कुछ दिनों के बाद एक और रायट हुआ, एक दंगे हुए पेरिस में और कंट्री साइड में। Most of the people protesting were against the high prices of bread. You know, Paris या जितनी भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है, bread is the staple food for the people of these countries. You know what do you mean by staple food? Staple diet of common people. ठीक है, हमारे यहाँ staple food क्या है? Can anybody tell me what is the staple food of India? Rice. Very good, Mridula. Very good, very spontaneous. Mridula, rice is the first staple food of our country. उसके बाद second number पे wheat आता है. You are Nikhil. Okay. So, but you have entered with a different name. Oh, all right, Nikhil. Very good. So, पहले नंबर पे rice हमारा staple food आता है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है wheat. ठीक है? व्हीट मीन्स चपाती जो बनती है व्हीट से, राइस मतलब चावल, जो चावल बना के खाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में वैसे ही स्टेपल फूड आता है ब्रेड। ठीक है, ब्रेड, वो ब्रेड बना के खाते हैं। और ब्रेड अभी उनके, जैसे हमारे इंडिया में लेटेस्ट आया है ब्रेड का, यू नो, आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रेड लोगों ने खानी शुरू की है अभी थोड़े सालों से ही। लेकिन वहां पर वो ब्रेड, हमारे यहाँ पे इट इज अ सिंबल ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, बट फॉर वेस्टर्न पीपल इट इज देयर स्टेपल फूड। ठीक है, आम खाना है उनका, जो वो आम अपने घरों में खाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हाँ, तो फॉलोइंग डेज में 14 जुलाई 1789 के जो बाद के दिन थे, उस दिन तो उन्होंने बेस्टाइल को तोड़ दिया, कमांडर को मार दिया, 7 प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया।
उसके जो फॉलोइंग डेज थे उसमें बहुत सारे राइट्स हुए कंट्री साइड में भी। कंट्री साइड होता है जो आउटस्कर्ट्स होती हैं, बाहर की गांव टाइप की जो जगहें होती है उनको कंट्री साइड कहते हैं, ठीक है, विलेजेस जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो कंट्री साइड्स में और पेरिस सिटी में बहुत सारे ऐसे रायट्स हुए। मोस्ट ऑफ दीज रायट्स वर बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड का प्राइस बहुत हाई हो गया था। कॉमन पीपल कुड नॉट अफोर्ड द ब्रेड। वो ब्रेड को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, खाना मतलब बेसिक खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो लोगों को इस बात से गुस्सा आ रहा था और दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द किंग, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो प्राइस सेट करती है, ठीक है। अब ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी रीजंस हम आगे पढ़ेंगे। पहले आज 14 जुलाई का सिनारियो पढ़ रहे हैं। 14 जुलाई से पहले वाली जो कहानी है वो अभी थोड़ी देर में मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो दिस लेड टू अ चेन ऑफ इवेंट्स that ultimately led to execution of the king of France and and the change of the rule, the government of France. ये छोटे छोटे इवेंट्स बहुत जल्दी टर्न अप हो गए, जिससे कि किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, मार दिया गया, और फ्रांस का पूरा स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, हाउ एंड व्हाई, राइट। सो लेट अस स्टार्ट अप। King Louis XVI, he was the ruler of France in the 18th century. We can say the later 18th century. Late 18th century, 1774 में किंग लुई 16, इट इज नॉट लुइस एस, मोस्टली फ्रेंच जो हम लैंग्वेज होती है, अगर आप लोगों ने भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, उसमें एस बेसिकली साइलेंट होता है नॉर्मली। आई मीन नॉट एवरी टाइम, आई हैवंट स्टडीड फ्रेंच मच, बट जितने भी वर्ड्स हैं आप यहाँ पर हम प्रोनाउंस करने वाले, उसमें अगर एस लास्ट में आ रहा है तो मोस्टली इट इज साइलेंट, ठीक है। तो लुई, इट इज लुइस नहीं लुई। तो किंग लुई 16 was the king of France who became king in 1774, और हमने अभी इवेंट कब का पढ़ा था, 1779 का। 1774 में किंग लुई 1789 का इवेंट पढ़ा था हमने। तो किंग लुई 16 जो है वो 1774 में किंग बने, और 15 सालों में ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा फ्रांस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। अब उन 15 सालों में क्या हुआ, 15 सालों में ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ था, वो 15 सालों से कई साल पहले से चलता आ रहा था, लेकिन इन 15 सालों में वो उसका जो पेस था वो बढ़ गया। पेस मींस द स्पीड उसकी ज्यादा हो गई, ज्यादा तेजी से वो लोग मतलब किंग जो है वो गलत फैसले करना शुरू हो गया, लोगों पे ज्यादा जुल्म करना शुरू हो गया, इसीलिए ये सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो 1774 से ये सारा स्टार्ट हुआ जब किंग लुई 16 बिकेम द किंग, ठीक है। ही वाज ओनली 20 years old at that time. King Louis was a very young king, only 20 years old, and he became the king of France, right? 20 साल का था, and he was married to an Austrian princess. अगर फ्रांस के प्रिंस की शादी ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस से हो रही है, इसका मतलब कि ऑस्ट्रिया जो था वो फ्रांस की आपस में they were allies, right? Allies to be. They were all allies, ठीक है। नॉर्मली पहले ऐसे ही होता था, किंग्स और किंगडम्स में अगर कुछ एलाइज बनते थे, दे यूज्ड टू गेट मैरिड विद ईच अदर, ठीक है। बहुत सारे हमने हिस्ट्री में आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, जब बहुत सारे प्रिंस की जो शादियां हैं वो दूसरे किंगडम्स के प्रिंसेसेस के साथ हुई थी, और आपस में फिर वो एलाइज बन गए थे, ठीक है। तो this King Louis XVI was married to an Austrian princess, Marie Antoinette. Marie Antoinette was the name of that princess, Austrian princess, जिसके साथ शादी हुई थी लुई 16 की, ठीक है। जब वो किंग बन के आए, किंग लुई 16, he found that his treasury was empty. अब ट्रेजरी होती क्या है?
ट्रेजरी होती है खजाना, राजा का उनके खजाना। डेप्थ बहुत ज्यादा थी। हाँ जी बेटा, I know you have read the chapter, but let me tell the story in sequence. ठीक है, तो मुझे पता है आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, but let me teach it in my ways. Maybe there are kids or students who have not got it, तो उनको समझाने के लिए एक कहानी सुनाने दो मुझे पता है बड़े अच्छे बच्चे हैं आप, आपको आता है ये चैप्टर, तो हाँ उन पे डेप्थ बहुत ज्यादा है। जब किंग लुई 1774 में किंग बने, तो उन्होंने देखा कि उनकी ट्रेजरी तो खाली थी, सारी खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि इतने साल, अब लड़ाइयां लड़नी कोई आसान बात नहीं होती है। लड़ाइयां जब लड़ते हैं ना राजे महाराजे, और अभी भी आजकल भी कंट्रीज में आप सोचते होंगे इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई क्यों नहीं कर लेता है, चाइना के साथ लड़ाई क्यों नहीं, अरे पूरी डेवलपमेंट रुक जाती है। ठीक है, कंट्री ने जितना पिछले 100 सालों में कमाया है सारा का सारा खजाना खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह कोई किंग लुई के he belonged to Bourbon family of kings, तो उन्होंने फ्रांस पे रूल करते थे। बर्बन किंग्स जो थे ना, इट वाज अ फैमिली, बर्बन फैमिली जो थी, जो बर्बन बिस्किट्स आप खाते हैं आजकल, इट इज द नेम व्हिच इज द रॉयल फैमिली ऑफ, इट वाज द रॉयल फैमिली ऑफ फ्रांस, बर्बन फैमिलीज। तो बर्बन फैमिली से थे ये किंग लुई 1774 में इन्होंने थ्रोन लिया था, अपना असेंड किया था। और जब उन्होंने देखा कि मेरी ट्रेजरी खाली है, अब क्या किया जाए। पहले ये ट्रेजरी खाली क्यों हुई? बिकॉज ऑफ लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। ठीक है, उसके बाद वॉर के साथ साथ एक्स्ट्रावेगेंट डिस्कोर्ट ऑफ द किंग्स एंड मिनिस्टर्स, एक्स्ट्रावेगेंट होता है बहुत खर्चीला। ठीक है, तो फ्रांस के जितने भी नोबिलिटीज थी उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा खर्चे करते थे अपने प्लेजर के लिए, अपनी लग्जरीज के लिए। ठीक है, तो nobody wanted or cared about saving the money, saving the treasure, not even the previous kings. ठीक है, उसके अलावा इसे कहते थे पैलेस ऑफ वर्सेल। It is not Versailles. You might be pronouncing it as Versailles. The correct word is Versailles. 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 Versailles is the place in France, जिसे जो जगह है फ्रांस में जहां ये पैलेस था फ्रांस का, किंग्स का, पैलेस ऑफ वर्सेई कहते थे उसे। तो पैलेस ऑफ वर्सेई में जितने भी नोबिलिटीज थी उनको वो करने के लिए उनका एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे होते थे, जिसके कारण भी ट्रेजरी जो है वो खाली होना शुरू होगी। और सबसे ज्यादा आगे किंग लुई 16 ने भी अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट होने के लिए हेल्प किया। यू नो, अमेरिका वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। अगर आपको हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता है, जैसे वी वर अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, उसी तरह अमेरिका वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो अमेरिका की 13 स्टेट्स को किंग लुई ने हेल्प किया टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो उसमें भी खर्चा हुआ, काफी खर्चा हुआ, उससे भी जो है वो ट्रेजरी जो है वो खाली हुई। तो मेंटेनेंस ऑफ Palace of Versailles, the long years of war, and the helping America, 13 states of America to declare their independence against their common enemies. Britain was their common enemies. Enemy इसका फ्रांस का भी एनिमी था और अमेरिका का भी एनिमी था ब्रिटेन। ठीक है, तो उसके बाद ये सारा जब ऐड हो गया, इट एडेड 1 billion more liver of tax. What was liver? Liver was the name of the currency. जैसे pound है वैसे ही liver था फ्रांस में। Pound is also a currency in Europe. ठीक है, तो वैसे liver था, it was the currency of France. Yes, very good, Namish and Vansh. तो this लिवर वॉज द करेंसी ऑफ फ्रांस, जो 2 मिलियन ऑलरेडी डेट में थे। डेट मीन्स उधार था उनके ऊपर। ठीक है, 2 बिलियन लिवर ऑलरेडी उधार था, उसमें 1 बिलियन और ऐड हो गया अमेरिका की मदद करने के बाद। ठीक है, 1 बिलियन, तो टोटल 3 बिलियन लिवर्स में दी फ्रेंच किंगडम
this Bourbon kingdom under Louis XVI was under debt of 3 billion livres. ठीक है, आगे पीछे किंगडम अब से उधार लिया हुआ था. Lenders who gave credit now began to charge 10% extra interest. उन्होंने जिन्होंने दिया हुआ था इतने बिलियंस ऑफ लिवर्स जो उनको उधार दिए हुए थे, अब वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए. अब French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on the interest payments. Most of its budget was going in the payment of the interest only. ठीक है. Now to meet the regular expenses, the people were forced to pay taxes. ठीक है. The government was forced to increase taxes, and who was to pay the taxes? The people. अब यहां पर आती है 3 states of France. 3 states थी फ्रांस की. सबसे नीचे वाली, बीच वाली और ऊपर वाली. सबसे नीचे वाली स्टेट जो थी जहां पर कॉमन पीपल रहते थे, उसे कहते थे थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट comprised of peasants, farmers, the common people, artisans, even the businessmen, lawyers, professionals. I mean जो भी कॉमन लोग थे वो थे थर्ड स्टेट के, और टैक्स जो था सिर्फ थर्ड स्टेट देती थी. ठीक है. सेकेंड स्टेट थी नोबिलिटी, द किंग्स. नोबिलिटी होते हैं नोबल्स, द किंग्स. ठीक है. सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी आती थी. और फर्स्ट स्टेट जो थी वो थी क्लर्जी. क्लर्जी हो गए पोप्स, द रिलीजन. ठीक है. रिलीजन जैसे हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर है, आपको याद हो, अगर आपको ध्यान से सोचें देखें तो हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम भी कुछ ऐसा ही था स्ट्रक्चर. ठीक है. क्या स्ट्रक्चर था कि सबसे नीचे जो थे वो लोअर कास्ट थे, बीच में जो सेकंड नंबर पे आते थे लोअर कास्ट थे, थोड़े हाई कास्ट, बीच में वैश्य और शूद्र जो थे वो लो कास्ट के थे. उसके बाद क्षत्रिय आते थे, जो नोबिलिटीज होती थी, जो राजा होते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था. और सबसे ऊपर ब्राह्मण्स होते थे. ठीक है. प्रीस्ट, वो राजा नहीं होते थे लेकिन फिर भी वो राजा से भी ऊपर होते थे. क्यों? क्योंकि उनका गॉड के साथ डायरेक्ट लिंक, ऐसा बोला जाता है. वी ऑल नो कि ऐसा सच्ची में था नहीं. यस अर्नवन लक्ष्य, यू आर राइट. तो क्या होता था कि जो ब्राह्मण्स जैसे हमारे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट लेवल पे थे, वैसे ही फ्रांस में हाईएस्ट लेवल पे थी क्लर्जी. क्लर्जी होते थे द रिलीजियस पीपल, पोप्स एंड ऑल. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेट सबसे ऊपर आ गई क्लर्जी, उसके बाद सेकंड स्टेट आ गई नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट हाँ जो जितना भी काम यहाँ पर भी, जितनी भी नोबिलिटी जो भी काम करते थे वो सारा वो करते थे क्लर्जी से पूछ के. ठीक है. सबसे ऊपर क्लर्जी होती थी. ठीक है. उसके बाद राजा और फिर थर्ड स्टेट. और जितने भी टैक्स देने होते थे वो देने होते थे थर्ड स्टेट को. काम सारा करना होता था थर्ड स्टेट को. ठीक है. और लग्जरीज सारी करते थे नोबिलिटी एंड क्लर्जी. समझ आ रही है? काम किसने करना है? थर्ड स्टेट ने. और टैक्स भी देने हैं थर्ड स्टेट ने. किसके लिए देने हैं? ताकि नोबिलिटीज जो है और क्लर्जी जो है अपनी लग्जरीज को उसके ऊपर वो खर्चा कर सके, अपनी लग्जरीज पे, एक्स्ट्रावेगेंट जो जितने भी खर्चे करते थे वो. ठीक है. तो only the third state used to pay taxes. ठीक है. This whole system of 3 state, it was based on old feudal system and was termed as old regime. It was termed as old regime. Old regime means French society जो 1780 से पहले 1789 से पहले की जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसे कहते थे ओल्ड regime. And this system of 3 state was called as old regime. समझ आ गया इतना बेटा? उसके बाद 90% of population was of peasants. 90% population फ्रांस की peasants की population थी. ठीक है. और उसमें से कुछ थोड़े मतलब कॉमन मैन की पॉपुलेशन थी 90% जो peasants थे, उसमें से कुछ
Old regime. Okay, Namish, I'll repeat the old regime. Old regime comprised of the 3 estates: first estate, second estate, and third estate. Right? First estate में clergy थी, जो priest होते थे जहां पर. Second estate में nobility थी, मतलब kings. और third estate जिसमें common men, जिसमें peasants, businessmen, professionals, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्स पर्सन, वो लोग होते थे. और सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो सिर्फ थर्ड एस्टेट देती थी. सेकंड एस्टेट एंड फर्स्ट एस्टेट they were not giving any taxes. ठीक है? Okay, so the old regime was this. उसके बाद 90% of the population comprised of the peasants. ठीक है? However, only a very small number of them had their own land. Most of the peasants were, जैसे हमने अभी पालमपुर के केस में पढ़ा, most of the peasants were what? Landless. Landless peasants थे, और दूसरों की उस पे, yes, landless peasants थे और दूसरों की land पे वो काम करते थे. ठीक है? तो only a small number of them owned and cultivated their own land. ठीक है? About 60% of the land was owned by the nobles and the clergy. Right? Also, the clergy and the nobility had certain privileges. वो privileges क्या थे? That they were the feudal dues. They used to be extracted only from the third estate. There were 3 types of taxes. अब ये समझिए, पहले हमने अभी समझी ना 3 estates थी, अब ये समझिए कि 3 तरह के taxes लेते थे वो. ठीक है? एक थे feudal taxes, feudal dues जिन्हें कहते थे. ठीक है? feudal dues थी जो nobility को taxes सारे कौन दे रहे थे? सारे के सारे taxes were given by the third estate. ठीक है? थर्ड एस्टेट 3 तरह की टैक्सेस देती थी. एक हो गए फ्यूडल ड्यूज. फ्यूडल ड्यूज मतलब कि जो उन्होंने नोबल्स को टैक्स देने होते थे, किंग्स को. ठीक है? दूसरा था टिथीज. टिथीज वाज द टैक्स टू बी गिवन टू द क्लर्जी. देखो, कॉमन लोग नोबल्स को अलग से टैक्स देते थे, क्लर्जी को अलग से टैक्स देते थे. एंड द थर्ड टाइप ऑफ टैक्स वाज टेली. टेली वाज अ टैक्स which was a direct tax, जो उनसे उनकी सैलरी से नहीं लिया जाता था, बल्कि वो जितना भी सामान खरीदते थे ना, जो कॉमन चीजों पे, डेली यूज की आइटम्स पे वो टैक्स लगा होता था. ठीक है? एक्स्ट्रा टैक्स. मतलब 3 तरह से, फ्यूडल ड्यूज, टिथीज और टैलीज, 3 तरह के टैक्स वो दे रहे थे. नोबल्स को अलग से, क्लर्जी को अलग से, और एक कॉमन जो डेली यूज की आइटम्स पे डायरेक्ट टैक्स वो देते थे, वो अलग से दे रहे थे. इतना टैक्स एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था इन लोगों से. समझ आ गया? उसके बाद जो लोगों की हालत थी वो कैसी थी? अब अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, सोशल स्ट्रक्चर क्या था फ्रेंच सोसाइटी का, और टैक्स कौन दे रहे थे और किस तरह के टैक्स थे. ठीक है? अभी now we are going to study what was the situation at the ground level. How were the people surviving? Right? So the struggle to survive was very hard. Right? The population of France, it was increasing at an enormous rate. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, जैसे कि हमने पढ़ा कि 1717 में जहां पे 23 मिलियन लोग थे, वहीं पे 1789 कितने साल हो गए? 1713 से लेके 1789 तक कितने साल हो गए? 76 years. 75 या 76 years में population of France increased from 23 million to 28 million. Right? इतनी पॉपुलेशन उनकी बढ़ गई थी. 23 to 28 मिलियन मींस 5 मिलियन लोग बढ़ गए थे. ठीक है? उन 5 मिलियन लोगों के बढ़ने से क्या हुआ कि द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन ऑल्सो इंक्रीज्ड. खाने की डिमांड इंक्रीज होगी. ठीक है? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने के लिए ज्यादा चाहिए. अब खाने की डिमांड इंक्रीज हो रही थी तो क्योंकि the production of grains could not keep pace with the demand, so the price of bread, which was a staple diet of majority, it started increasing rapidly.
तो ब्रेड के प्राइस, अभी हमने पढ़ा था ना कि सबसे ज्यादा जो लोग थे वो किस चीज के खिलाफ थे, राइजिंग प्राइस ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड के प्राइस आपको पता चला क्यों इंक्रीज हो रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, फूड ग्रेन्स पे बहुत सारी डिमांड, फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, और डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो प्राइस ब्रेड का इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, लेकिन वेजेस, जो लोगों को कॉमन, जो थर्ड स्टेट को वेजेस मिलते थे, वो इतने वेजेस नहीं थे कि वो बढ़ती महंगाई के साथ कोप अप कर सके। समझ आया? बढ़ती महंगाई के साथ वेजेस जो थे वो वेजेस राइज नहीं हो रहे थे, लेकिन कॉस्ट राइज होती जा रही थी। तो थोड़े वेजेस में ज्यादा चीजों की, ज्यादा महंगी चीजें खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। ठीक है, so the gap between rich and poor increased. Very good, Namish. So the gap between rich and poor started increasing and it led to subsistence crisis. Now what do you mean by subsistence crisis? Subsistence crisis hota hai an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. ठीक है, basic means of shortage in the basic needs. So the basic needs of survival jo hai, it was being endangered, right? Yes, the video is freeze, but am I audible to everyone? आवाज आ रही है बेटा मेरी? ग्रेट, तो आवाज सुनिए। अब क्या हुआ कि इंक्रीजिंग टैक्सेस से या फूड स्कार्सिटी के लिए तो पहले भी पेजेंट्स ने बहुत सारे लड़ाइयां लड़ी थी, रिवोल्ट्स किए थे, लेकिन वो रिवोल्ट्स इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बारी रिवोल्ट बड़ा सक्सेसफुल हो रहा था। वो इसलिए सक्सेसफुल हो रहा था क्योंकि there was one group of people who was in that revolt. What was that group of people? That group of people was called as middle class. Middle class was a part of third estate only, but they started earning a lot of money through trade and crafts and industry. Trade और industry से इन लोगों ने पैसे कमाने शुरू किए, थर्ड स्टेट वालों ने, जो बिजनेसमैन थे, प्लस many professionals also were a part of this third estate, like lawyers, like administrative officers. तो ये सारे जो थे ये थर्ड स्टेट के पार्ट थे। ठीक है, और इन लोगों को भी टैक्स देना होता था, लेकिन ये लोगों ने इतनी समझदार हो गए थे कि ये चीज क्वेश्चन करें कि भाई सिर्फ हम ही क्यों टैक्स दें, व्हाई नॉट नोबिलिटी, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो तो टैक्स दे ही नहीं रहे हैं, रादर हम लोग जिनके पास इतना कम पैसा है वो टैक्स भी दे रहे हैं और वो इतने जो अमीर लोग हैं उनका खर्चा भी उठा रहे हैं। ठीक है, तो this 18th century it witnessed the emergence of a new social group which was called as middle class. ठीक है, who earned its wealth through expanding overseas trade and industries, and many professionals also such as lawyers or administrative officers were also a part of this middle class group. This middle class group was an educated group and believed that no group or society is privileged by birth. ठीक है, ये जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट बनाई हुई थी इनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिले हुए थे, right? जैसे you can always keep make this middle class log the, because they were educated and they started questioning that why people should have privileges by birth. ठीक है, जो जितनी मेहनत करेगा, जितना जिसका कैपेबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंगली उसको
सोसाइटी में प्लेस मिलना चाहिए. So this is what their views were. ठीक है, तो many new thinkers and philosophers started making their ideologies public. They started sharing their ideologies with common public, right, through their books and articles in the newspapers. Who were they? One was John Locke, was the first philosopher. The second was Jean-Jacques Rousseau. Rousseau was a very one of the greatest philosophers of France during 18th century. ठीक है, in his book Two Treatises of Government, Locke refused that the doctrine of divine and absolute right to monarch should not be accepted. Is my voice not clear, beta? Am I audible? थैंक यू बेटा. ओके, तो रूजो ने भी लॉके के इस फिलॉसफी को, इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया, और ही सेड दैट अ गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कंट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स. सोशल कंट्रैक्ट का मतलब है उन दोनों में एक आपस में एक रजामंदी होनी चाहिए, जो रूल कर रहा है और जो कॉमन पीपल है. ठीक है, एब्सोल्यूट राइट टू रूल, एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इन द बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, Montesquieu and some other philosopher, he proposed that a division of power should be there within government, between legislative, executive and the judiciary. Imagine 18th century के philosopher ने बोला, जो आज हम organs of government पढ़ रहे हैं, different organs of government जो हम पढ़ते हैं, judiciary, executive and legislature. ये जो स्ट्रक्चर है, ये 18th सेंचुरी में, आज से 400 साल पहले किसने दिया था? एक फिलोसोफर, मोंटेस्क्यू नाम का एक फिलोसोफर था, उसने ये स्ट्रक्चर दिया था, जो जिसे हम आज इंडिया में या बाकी वर्ल्ड में फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज दैट टाइम followed in USA also. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे पहले ये मॉडल को फॉलो किया जो मोंटेस्क्यू ने दिया था, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो था. एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस. अमेरिका, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प किया किंग लुई ने. ठीक है, लेकिन अमेरिका ने इंडिपेंडेंस के बाद अपना जो स्ट्रक्चर बनाया, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाया, इट वाज बेस्ड ऑन द फिलोसफीज एंड आइडियाज ऑफ ग्रेट फिलोसोफर्स ऑफ फ्रांस. राइट, उन्होंने जितने भी राइट्स दिए लोगों को, जितने भी गवर्नमेंट के structures बनाए, they were all based on the philosophies the thinkers of France. Right, the ideas of these philosophers were people started discussing extensively these ideas of having a government which should be which should listen to the problems of the people, which should have, where the people should have some say also. That should be the type of government. तो ऐसी ये सारी चीजें जो philosophers लिख रहे थे अपनी books में, newspapers में, these ideas, people started discussing these ideas extensively in common areas of discussion. अब common areas of discussion कहाँ होते थे? सैलून्स हो गए, कॉफी हाउसेस हो गए. यहाँ पर लोगों ने ये, और जहां पर लोग पढ़ नहीं पाते थे इन बुक्स और न्यूज़पेपर्स को, वहां पर इन बुक्स और न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को जोर जोर से पढ़ के सुनाया जाता था, ताकि सारे लोग सुने कि क्या आइडियाज हैं जो आजकल हमारे फिलोसोफर्स सोच रहे हैं. So these ideas were spread through books and newspapers, right?
So the news that now, because मैंने अभी बताया कि लुई was about to increase the tax, तो ये न्यूज जो है ये भी फैल गई बड़ी जल्दी पूरे फ्रांस में, ठीक है, and people started protesting. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि 14 जुलाई 1789 को एक रेवोल्यूशन हुआ था। ऑलराइट अंश, 14 जुलाई 1789 को एक रेवोल्यूशन लोगों ने शुरू किया था, जिसमें से उन्होंने फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल का तोड़ दिया था, वहां के कमांडर को मार दिया था और वहां के प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया था। ऑल्दो देयर वर ओनली 7 प्रिजनर्स बट दे वर रिलीज्ड। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, लोग इतने खिलाफ क्यों हुए, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब 1774 लुई 16 ने जब अपना किंगशिप शुरू किया, अपना कोरोनेशन हुआ था 1774 में उसका, तो उस वक्त उसके बाद से he found the treasure to be empty, long years of war and extravagancy of the palace of Versailles, वर्सेय के पैलेस की extravagancy और long years of war had already burdened this the treasury with lots and lots of debt. 2 billion का डेट ऑलरेडी था। उसके बाद किंग लुई 16 helped 13 states of America to gain their freedom from Britain, right? That added another 1 billion livres to the already existing 2 billion livres of debt, right? Now the ones who had given the tax, they started charging an interest rate of 10%, and in order to deal with this increasing rate of debt and interest, the king planned to increase the tax. Tax किसका increase होना था? Third estate, ordinary people, because that time the French society, which was called as old regime, was divided into 3 estates: clergy, nobility, and the common people, peasants and other common people, and the taxes were only given by the third estate, right? The clergy and nobility, they were not giving any tax. Uske baad ye jo taxes the, these were also of 3 types. Feudal dues the, jo nobility ko dete the wo log tax. Then there was tethys, jo clergy ko dete the tax, and finally there was a direct tax called as tallies, jo ki डेली यूज आइटम्स पे वो टैक्स दिया करते थे, ठीक है। उसके साथ साथ फ्रांस की पॉपुलेशन जो 5 मिलियन बढ़ गई थी पिछले 75 सालों में, उसकी पिछले 75 इयर्स में, उसकी वजह से ग्रेन्स पे बहुत लोड आ गया था। the crop could not take the pressure of population. That is why the prices of bread also rose, ठीक है। उसके बाद it led to subsistence crisis, ठीक है। Then इस subsistence crisis was very much aided by the drought that took place there. Drought और famine की वजह से और subsistence crisis की वजह से क्या हुआ कि लोगों की जो वो कहते हैं ना पेशेंस खत्म होना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद there was a growing role of middle class also. There was rise in middle class people. These middle class people who were there, they were the people who earned their wealth through foreign trade and industry, growing industry, and they also had professionals as lawyers and administrative officials. This gave rise to lots and lots of thinkers in France, philosophers and thinkers. Most of them wrote their books and their ideas in the newspapers, and these ideas and ideologies were being discussed extensively in the public discussion forums, ठीक है, like saloons and cafe houses, right? Even the American Constituent, the newly existing American Constituent that followed whatever these philosophers said, also gave this whole thing a boost, right?
जितने भी ये सारे रीजंस थे, उसके कारण लोगों को एक वजह मिली अपने राजा के खिलाफ खड़े होने की, एक रीजन मिला। ठीक है, सो दिस वाज द स्टोरी कि व्हाई द पीपल वर सो एंग्री। अभी तक हमने ये पढ़ा कि लोग इतने एंग्री क्यों थे। अब आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कैसे, एक हमने बोला रेवोल्यूशन इज ऑलवेज अ सडन चेंज। इतनी सडनली क्या हुआ कि जिससे कि एकदम से लोग जो है वो आर्मर्ड रेवोल्यूशन के लिए आ गए बाहर। तो उसका हम नेक्स्ट वीक पढ़े। Right? Shall we end the class right now? Okay. अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, have you all received the political science notes of first chapter? Great. अब आपको मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स भेजने हैं, ठीक है? You already have my geography notes. You already have my political science notes. हमने एक चैप्टर उसका कंप्लीट कर लिया है. Now I'll be sending you the economics notes. Namish, what do you want me to send again? नमीश बेटा क्या भेजूं मैं दोबारा? फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस? नमीश, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस चाहिए बेटा आपको? पॉलिटिकल साइंस। अभी वो 2 दिन पहले ही बेटा आपके ग्रुप में भेजा है, इफ यू कैन चेक इट अगेन देयर। 2 दिन पहले ही आपके ग्रुप में वो भेजा गया है। अच्छा, इट्स डिलीटेड। ऑल राइट, आई बी सेंडिंग इट अगेन। मैं ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स के तीनों के नोट्स इकट्ठे दोबारा एक बार भेज दूंगी, ठीक है? सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच and we'll meet again. This chapter of history is going to take a few lectures. ये कोई 2 lectures में खत्म होने वाला चैप्टर है नहीं है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है अगस्त का मंथ हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने में ही जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।